Well, I introduced KK to the world of music as a young artist. It was an amazing time. मुझे याद है कि जब वो एल्बम रिलीज हुआ था, he came to me and he said, "Les, finally my dream has come true यार." KK ने जो गाने गाए हैं ना, सब दिल से गाए हैं. हम सब बहुत आई थिंक अ प्रिविलेज जनरेशन है जिन्होंने उनका म्यूजिक सुना है. तो बहुत बिंदास था वो. जब गाया तो ऐसा गाया कि आप यकीन मानिए, तब से जो लोगों ने रोना शुरू किया तो आज तक रो ही रहे. दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है. Well, I introduced KK to the world of music as a young artist. और उस टाइम जब मैंने पल और यारो दोस्ती जैसे गाने के साथ KK को इंट्रोड्यूस किया था, इट वॉज एन अमेजिंग टाइम. मुझे याद है कि जब वो एल्बम रिलीज़ हुआ था, he came to me and he said, "Les, finally my dream has come true. Yeah, I've always wanted you to make my album and it's happened." और उसके बाद so many years later to recreate यारी नंबर 1, वही यारो दोस्ती का जो गाना है, and to have Nakul and Tamra sing for me in the same studio. और वही स्टूडियो में जहाँ KK ने गाया था, वही जगह पे जहाँ KK खड़ा रहता था, they stood and sang, and I think I'm blessed because I've got to live the whole song one more time with Yari number 1 and with Nakul and Tamra, and I think it's a very very special moment. और आज KK का बर्थडे है तो मुझे लगता है कि he's also smiling and मेरे तरफ से एक स्लाइस केक तो खाएगा. Yeah, I mean it was slices of cake. One from my side he's going to have for sure. It was a very special moment, and Leslie made it really comfortable for us. He was like, just do your thing. Yeah. There was no pressure, and it's just a very comfortable, fun environment, and that whole vibe of Yaro really got recreated because of that, and so, I mean, we couldn't be happier, and we're excited to perform it today to all of you. I'm totally looking forward to your performance. You know why? Because not only are you KK's kids and you're talented and all, but what I love about the way you all take your songs and make it your own. I think, I just heard Tadap Tadap, Tamra's version. I think it's fabulous. Thank so you. they've got the talent. So I think it's going to shine tonight. Yeah. Hopefully, yeah. Hopefully, yeah. Actually, Nakul, when he went in to record his few lines, we all, me, Leslie, uncle, mom, we were shocked because we were just like, are you singing? Because it sounded exactly like dad. So we thought they're just playing dad's vocals. And then all three of us looked at each other like, are you singing? And it was Nakul, so that Because was pretty Nakul has never really sung in Hindi. Yeah. And for the first time he was singing in Hindi. So Abhay, जो sound engineer थे, he was the assistant engineer जब हमने यारो दोस्ती originally KK के साथ record किया था. Today he was the chief engineer. So he was sitting and we have recorded KK so many times in the studio. We know what his voice sounds like on the speaker. और जब नकुल ने जो पहला लाइन गाया ना, I saw अबे ऐसे कंप्यूटर पे था, ऐसा हो गया. Shocked, and I was shocked because it sounded like KK singing. So I'm really surprised that you sound so similar to your dad, but I think you got your own vibe, and I think that's what's going to make you special. Like, he doesn't sound exactly like dad, but he just has He's got the voice. He has that unique thing, you know what I mean? Like, He's got the voice, but the soul is his. Yeah. And that's what makes it special. Yeah, it was a funny moment. I saw them kind of wince, and I was like, okay, did I do something wrong, or did something technical happen? So I stopped singing, and I thought, they're playing back dad's voice, and it was just a funny. It was yours. We've been looking forward to doing this since a while now. Dad had never heard us perform on stage or sing Hindi much, specifically. Yeah. So a lot of the times when we were in rehearsal, we were hoping, we were imagining him beside us and just wondering what he would be like, how his energy would be, and how excited and how he'd be joking around, and it's a bittersweet kind of a moment for me and Tamra. We're excited to bring the music for everyone who loved Dad, but it's also hard for us because we're just imagining how proud Dad would have been of us. Yeah, and it's weird to be in Dad's place, on stage, because normally we're in the audience and
looking at him, and now we're on stage, and hopefully he's looking at us. Yeah. I mean, normally we see him perform with the band guys who we're going to play with, and now being able to do that with them makes us feel connected to him. So, I mean, we're just looking forward to. Excited. Yeah, we're excited. A little nervous too. Very nervous. Yeah, quite nervous, and we just hope the show goes off well. Yeah. So you can see how much goodwill he's created just with the songs and the personality that he was. And I think, because I've seen many people come and go in my lifetime, but unfortunately that night when he left, I've never seen so many people shocked across the board. I was called by so many radio stations to be interviewed, but जो मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं आरजे वो खुद रो रहे हैं. It's never happened to me. So it's all real. वो सब दिल से है, क्योंकि केके ने जो गाने गाए हैं ना वो सब दिल से गाए हैं और आपके दिल तक पहुँचे हैं, इसीलिए you love him. Because it's about nothing else. It's about music and his heart and his soul and his sincerity in what he sang. And I think that's why the people love him. कि बस के जहाँ भी रहे खुश रहे, दिल से दुआएं उसके लिए. उसने पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छा काम किया और इतना अच्छा काम किया कि लोग उसको हमेशा याद रखेंगे. के को पहली बार मैं वहीं मिला था जब मैंने तड़प तड़प के का ट्रैक किया था. मैं फर्स्ट टाइम उसको तभी मिला था. तो सबसे अच्छी बात मुझे उसकी यही लगी थी कि बड़ा ऑनेस्ट था. मैंने जब उसको तड़प तड़प के गाना गा के सुनाया तो बड़े मूड में आके बोलता है, अरे इस्माइल भाई ये गाना क्या, मैं पॉप सिंगर हूँ, मैं इस तरह के गाने तो मैंने कभी गाए नहीं और इस तरह का गाना मैं गा भी नहीं सकता हूँ, ये तो बहुत मुश्किल गाना है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी एक मासूमियत देखा ना मैंने. वरना हर आदमी पहले ये सोचता है कि मैं कोशिश करता हूँ, हो गया तो गा दूँगा. इसका वैसा नहीं था. इसने पहले ही मना कर दिया कि इस तरह का गाना मैं गा ही नहीं सकता हूँ. तो मैंने कहा यार तुम उसकी फ़िक्र मत करो, तुम ऑनेस्ट आदमी हो और मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज़ की ज़रूरत है. गाना कैसे गवाना तुम वो मुझ पर छोड़ दो. हाँ, फिर बाद में आप बोलना मत कि यार मैंने ठीक से गाया नहीं या मुझे गाना नहीं आता है. तो बहुत बिंदास था वो. और जब गाया तो ऐसा गाया कि आप यकीन मानिए तब से जो लोगों ने रोना शुरू किया तो आज तक रो ही रहे. मुझे हमेशा एक बात वो बोलता था, जब भी कहीं रास्ते में मिल जाता था या कहीं स्टूडियो में, मेरी मुलाकात बहुत कम थी उसके साथ और कभी बात भी फ़ोन पे कभी नहीं, क्योंकि वो भी अलग तरह का इंसान, मैं भी अलग तरह का. तो लेकिन वो जब भी मिलता था बहुत प्यार से मिलता था और वो एक ही चीज़ ऐसे हाथ जोड़ के बोलता था, इस्माइल भाई बहुत. फिर वो वैसे ही मस्ती में ही मिलता था. बोलता यार आप आज मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आप पूरी ज़िंदगी आप मुझे गाना मत देना. आपने एक गाना ऐसा दे दिया कि अब मैं पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है. तो तब भी उसकी ऑनेस्टी में देख के बड़ा खुश हो जाता था. सुबह 4 बजे उसको नींद से उठाया हमने, स्टूडियो में आ गया था वो 10 बजे. तभी मेरे ट्रैक पे काम चल रहा था. तो सुबह 4 बजे मेरा काम ख़त्म हुआ तो उसको हमने सुला दिया था वो चेयर पे. उठाया, ठीक है उठ जा, गाएगा ना? तो बोलता हाँ गाऊंगा. और सोचो सुबह 4 बजे उसने गाया ये गाना और कितना अच्छा गाया, सारी दुनिया को दिल को छू के निकल गया. आई जस्ट वॉन्ट टू से कि हम सब बहुत आई थिंक अ प्रिविलेज जनरेशन है जिन्होंने उनका म्यूज़िक सुना है. एंड इट्स अ you have to celebrate, you know, the amount of love he's gotten, the sort of songs he's done. And I think आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस उनके बर्थडे सेलिब्रेशन का पार्ट हूँ. अफसोस है कि वो आज हमारे साथ नहीं है, बट यू नो आई फील लाइक उनका पूरा करियर हम सबको सेलिब्रेट करने का आज मौका मिला है. एंड मुझे खुशी है कि आज मैं उस ग्रुप का पार्ट हूँ. आई थिंक इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि कोई यू नो किसी की डेथ हो जाना इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. बट आई डोंट थिंक कोई अपने साथ ये जानबूझ के करना चाहता है. आई थिंक ऐसी सर्कमस्टांसेस शायद लाइफ में पैदा हो जाती हैं दैट यू नो ऑल दिस हैपेंस. आई मीन इट्स वेरी सैड.
काफ़ी मिक्स सा फीलिंग है एक्चुअली। जब आ रहे थे यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कि कैसा लग रहा है ना। सो टू बी ऑनेस्ट इट इज़ काइंड ऑफ लिटिल लॉस्ट, डोंट नो। इट्स सेलिब्रेशन ऑल्सो, डेफिनेटली वी हैव टू सेलिब्रेट हिज म्यूज़िक एंड हिम एज ए पर्सन ऑल्सो। वो इंसान भी बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही अमेजिंग थे एक्चुअली। सो दैट्स व्हाई आई थिंक सब इकट्ठा हुए हैं। और उनके बच्चों को भी मिला मैं, अच्छा लगा। तमारा और नकुल बहुत ही अमेजिंग है वो भी। आई थिंक जो मैं समझा हूँ कि उनको वो उनके पिताजी से मिला है, वो एक जो ऑरा होता है, एक जो दुनिया को कैसे लेने के लिए विथ ए पिंच ऑफ सॉल्ट, वो वैसे ले रहे हैं। एंड उनका ये अच्छा एक्सपोजर है। आई रियली होप एंड विश देम ऑल द बेस्ट फॉर देयर करियर इन म्यूज़िक। मैंने सुना है, बहुत उनके साथ जैम नहीं किया है, पर अच्छे म्यूजिशियंस है, सेंसिबल है, सेंसिटिव है। सो या इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग डे, सब मिले हैं हम। यादें तो एक तो उनके बैंड से बड़ा जुड़ा हुआ हूँ मैं, जो उनका बैंड का हिस्ट्री रहा है 25 साल से। कल्याण बरुआ, जेडी, रिंकू, लिंसे नाव पहले ड्रम्स में, लिंसे बाद में आया। जिस दिन लिंसे आया था उस कॉन्सर्ट का भी कहानी है। आई थिंक बहुत पहले आई वॉज गोइंग ऑन स्टेज बिफोर के और हमारा मतलब एक ही कॉन्सर्ट में हम दोनों बजा रहे थे, आगे पीछे था। तो वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक सो क्लोजली। और उन्होंने आके, हमने थोड़ा टाइम बिताया वहाँ पे। और उस दिन वो लिंजे को टीटू से ड्रम चेंज ओवर कर रहे थे। लिंजे जो नया ड्रमर, तब नया था, अब तो बहुत पुराना है। सो के गिव मी दिस कॉन्फिडेंस ना, ऐसे मिलके। आई वॉज न्यू कमर इन द म्यूज़िक सीन, तो ऐसा एक एनर्जी दिया उन्होंने कि मैं, जो एक एंग्जाइटी होता है शो से पहले, वो रिलैक्स हो गया था। इसके बाद के का शो है, ये एक था कि इसके बाद के है, तो मुझे बचपन से सुनते आए हैं ऑल ऑफ द सॉन्ग्स, यारो, पल। तो ही मेड मी वेरी कंफर्टेबल, फील एट होम। एंड देन मेरे शो के बाद जब उनको देखा मैंने, हाउ कंफर्टेबल ही इज़ ऑन स्टेज, ये एक तरह का सीख ही था मेरे लिए, बहुत अच्छा लगा। एंड ऐसे कुछ बातें हैं। स्ट्रेस लेवल तो अब म्यूज़िक और इंडस्ट्री में नहीं है, वैसे ही लोगों को है। इतना ज़्यादा बर्नआउट हो रहे हैं लोग। पहले लोगों के हाथ में इतना वक्त होता था, अब किस मतलब अब कुछ सालों से ऐसे लगता है कि टाइम इतना फास्ट जा रहा है। तो वो जो स्ट्रेस लोग ले रहे हैं, वो तो है कहीं ना कहीं। आई थिंक वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस कि इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। आप नहीं भी रहे तो दुनिया चलता है। आपको लगता है आप कैमरा खा नहीं रहे, कैमरा चला रहे हैं, नहीं चलाएंगे तो कंपनी नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक हमें अपना टाइम चुराना है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने हेल्थ के लिए। एंड उसके बाद जो लिखा है वही होता है, वो तो कह नहीं सकते। इफ़ वी टॉक अबाउट के ही वॉज ए फैमिली मैन। एंड वो हम तो ज़्यादा मतलब सोशलाइज करते हैं शायद, वो मैं थोड़ा कम ही करता हूँ, वो मेरे से बहुत ज़्यादा कम करते थे। तो ये तो किस्मत में जो लिखा है, वी हैव टू जस्ट टेक इट एज इट कम्स। जस्ट सबको बोलूँगा कि कुछ ख़ास ऐसा अचीव नहीं करना होता है। मतलब ठीक है, जो दिल से कुछ करो, उसको कोई अगर रिस्पेक्ट आपको देगा, दिल से कर रहे हो रिस्पेक्ट, तो वो बहुत अच्छी बात है, उतना ही काफ़ी है। डोंट गो पुश योरसेल्फ सो मच कि आपका हेल्थ पे असर हो जाए। आई थिंक सबसे बढ़िया बात तो ये कि हम इस दुनिया में एक और दिन जी पाए ना, वही बहुत खूबसूरत है। तो टेक वन डे एट अ टाइम, खुश रहें, अपने अंडरस्टैंड हु लव्स यू, स्पेंड टाइम विद द लव्ड वंस। उसके आगे जो लिखा है, जैसे लिखा है, होगा। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.